Hello everyone. So I am making this video, this straight line again because few students asked me to give this video in English and Hindi. So my previous video was Assamese and English. So this time I am using another language and I will make another video. I am making another video for you people who do not understand Assamese. So we will start with straight line. Now in straight line what actually happens? So before going to straight line we must understand or we must recap the things which you have learned in your class 10, the two-dimensional geometry. You remember how to find or how to locate a point in a coordinate axis where there is x-axis and y-axis. I think all of you remember. Now there were some more things which you should know. For example, and I hope all of you know, एक तो था आपका distance formula. Distance formula. So distance formula में if there are so distance होता है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is your distance formula. Distance between any two points, which you have learned before. Another thing which you learned before is section formula. So section formula में क्या होता है? If there are two points PQ, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और यहां पे एक पॉइंट है R. ये मैं बता रहा हूं इंटरनल डिवीजन का. So this is your internal division. तो इंटरनल डिवीजन का है ये. तो इंटरनल डिवीजन में अगर ये डिस्टेंस PR, ये डिस्टेंस PR बाई QR रेशियो दिया हुआ है m बाई n, तब कोऑर्डिनेट्स ऑफ R हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. तो ये PR डिस्टेंस अगर m है, QR is n, then by using section formula I can find coordinates of R. And what will be the coordinates of R? So there is a simple method. In denominator you write m plus n. M plus n. And in numerator, this you multiply to this side, this you multiply to this side. So to find x coordinate, you multiply this ratio with the x coordinate of this. So that will be mx2 plus n will be multiplied with the x coordinate. And to find y coordinate, the same procedure. M will be multiplied with y coordinate of this. N will be multiplied with y coordinate of this. So that will be my2 plus ny1. So in this section formula, I am not explaining it much because you have learned in your class 10
Then there is a midpoint formula. I think all of you remember midpoint P x1 y1 Q x2 y2. So its midpoint is R. So coordinates of R will be, because this ratio is m:n, here ratio is 1:1, because these two are same, PR, QR, distance same. So there will be 1 plus 1, that is 2, 2. 1 will be multiplied with this x2, this one will be multiplied with this side, x coordinate. So that will be x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Another thing which you learned before is area of a triangle. What I am doing here, these 4 things you have learned in your class 10. So I am not explaining all those things again, because we have to move to our topic, straight line chapter. So area of a triangle, if 3 vertices are known, x1, y1, b, x2, y2, c, x3, y3. So area of triangle ABC will be half modulus, because area cannot be negative. So I hope all of you remember this formula, but still I will show you one technique. मैं आप लोगों को एक टेक्निक दिखा रहा हूं. ये टेक्निक से आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकेंगे फॉर्मूला को. So write 1 here. ये एरो मार्क यहां आ रहा है, 2 यहां लिखो, इस एरो मार्क में 3 लिखो. So 1 2 3. So आपको हमेशा ये साइकिल याद रखना होगा. So x1, if I wrote 1 को आप ढक लीजिए. क्या दिखाई दे रहा है उसके बाद में? 1 के इमीडिएट नेक्स्ट में क्या है? 2, उसके बाद में 3. तो वो होगा y2 माइनस y3 प्लस यहां x1 लिखा था, नाउ यू राइट x2. तो 2 रखा है, तो 2 को ढक लो. क्या दिखाई दे रहा है उसके बाद में? 3 एंड देन 1. तो ये होगा मेरा y3 माइनस y1. उसके बाद में x3, यहां पे क्या आएगा? y1 माइनस y2. 3 को ढका, उसके बाद 1 एंड 2. सो ये आपका है फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. नाउ if A, B and C are collinear, अगर ये collinear हुआ तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, A, B, C, ये तीनों अगर एक ही लाइन में हो, तो हम लोगों का जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो ट्राइंगल का एरिया 0 होगा. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0. मतलब अगर कॉलिनियर प्रूफ करना है तो उसका एरिया 0 दिखाओ, एंड यू कैन इजीली से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर. सो दीज आर द थिंग्स विच यू learned before. Now I'll show you something new. एक नया चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं. ये है आपका
slope of a line. So this is actually the beginning of your chapter straight line. The beginning of chapter straight line. तो चैप्टर स्ट्रेट लाइन में जो फर्स्ट थिंग है वो है स्लोप ऑफ ए लाइन. अब स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग स्लोप बोलते हैं ना, तो ये एक्चुअली इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन. अभी मैं बोल रहा हूं अगर ये लाइन और ये लाइन दो अलग अलग लाइन है, दोनों का डायरेक्शन अलग है. अभी दोनों का डायरेक्शन अलग कैसे है? अभी हम लोग कभी क्लास में खड़े होके या एग्जाम में लिखते समय थोड़ी दिखाएंगे कि ये ऐसे है ये ऐसे है. तो उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए. तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसी को हम स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं. तो स्लोप ऑफ ए लाइन हमेशा क्या होता है, अगर इस लाइन का मेरे को स्लोप निकालना है, आई हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा. देन स्लोप ऑफ लाइन हम लोग उसको हमेशा m से डिनोट करते हैं. ये इक्वल टू होगा tan थीटा. ये हमेशा होगा tan थीटा. अब थीटा कौन सा एंगल है? थीटा हमेशा वो वाला एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंगल होगा. इसका मतलब ये है कि अगर लाइन ऐसा हुआ तो मैं ये वाला मेजर नहीं करूंगा, हमको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज. सो वी नो क्लॉक का डायरेक्शन कौन सा है. सो ऑपोजिट ऑफ क्लॉक डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमको ऐसे घूमना है. You have to rotate and that is your theta. Some of you might think what will happen if it cuts to the negative side. अगर यह नेगेटिव साइड में काटा तो क्या होगा? That doesn't changes your value. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में, लाइन इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, रोटेट होके ये हमेशा उसका यही सिस्टम रहेगा. सो ये होगा स्लोप ऑफ लाइन. किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम लोग tan थीटा का वैल्यू यूज करते हैं. अच्छा, अभी अगर ये लाइन इसके साथ में एक्यूट एंगल बनेगा, सो एक्यूट एंगल अगर बनता है ये लाइन का, देन स्लोप tan थीटा ये हमेशा पॉजिटिव होगा. और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, if it is obtuse angle, then slope tan theta will be negative. Then slope will be negative. If it is line parallel to x axis, अगर x axis के पैरेलल हुआ, तब इस लाइन और x axis के बीच में कितना एंगल है? 0. Then slope is equal to tan 0 degree is equal to 0. स्लोप 0 होगा. तो स्लोप 0 होने का मतलब है लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है? थीटा 90 डिग्री. देन स्लोप इज इक्वल टू tan 90 degree. Now I am going to tell you something which many of you don't know. Tan 90 degree is undefined.
tan 90 degree is undefined. So what is the difference between undefined and infinity? Infinity means it's a very large value which cannot be measured. मतलब हम उसको measure नहीं कर सकते हैं. It's a very very large value. But when we say undefined, it means जिसका कोई definition नहीं है, which cannot be defined. उसको हम लोग बोल नहीं सकते क्या है, what is this? So कोई definition नहीं है. Anything divided by 0 is always undefined. So infinity and undefined are not same. Tan 90 degree is always undefined. That you remember always. इससे पहले क्लास 10 में आप लोगों ने जब सीखा था तब आप लोगों को शायद infinity आप लोगों ने यूज किया होगा. But the real fact is that will be undefined. तो ये है आपका undefined. अभी आपके पास में मैंने आपको स्लोप निकालने का तरीका दिखाया. So there are actually two different methods to find the slope of a line. तो एक लाइन का स्लोप निकालने का मेरे पास में दो डिफरेंट मेथड है. मेथड 1, when angle with positive direction of x-axis is known. मतलब अगर मेरे को एंगल पता है then the slope will be m equal to tan theta. But sometimes I may not know the angle between them. So what I will do, यहां पे आपका है P, यहां पे आपका Q. P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2. एनी टू पॉइंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट ही होना पड़ेगा. एनी टू पॉइंट. तो x1 y1 x2 y2, देन ऑल्सो स्लोप इज इक्वल टू, वी कैन फाइंड द स्लोप y2 minus y1 by x2 minus x1. y2 minus y1 by x2 minus x1. तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि स्लोप निकालने का दो मेथड है. एक मेथड है अगर मुझे एंगल पता है तो मैं tan थीटा उस एंगल का वैल्यू निकाल के स्लोप निकाल सकता हूं. या मेरे पास में एक दूसरा मेथड है, अगर मुझे एंगल नहीं पता है तो अगर दो पॉइंट पता है उस लाइन का, एनी टू पॉइंट्स, कहीं पे भी दो पॉइंट अगर मुझे पता है, देन द स्लोप विल बी दिस वन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, will I get the slope of a line same if I find it by two different method? एक ही लाइन का स्लोप एंगल मेथड से, पॉइंट मेथड से, आप किसी भी तरीके से निकालिए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है. मतलब यहां से जो वैल्यू मुझे मिल रहा है, ये एक्चुअली इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता, ये एंगल जो थीटा है, ये एक्चुअली उस tan थीटा के बराबर ही है. इस tan थीटा के बराबर ही है, उससे वो अलग नहीं है. मेथड अलग हो गया इसका मतलब उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं. दे आर द सेम थिंग. मैं आप लोगों को ये समझाता हूं कैसे होगा. अभी ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर दे दूंगा. ये परपेंडिकुलर अगर मैंने दिया, ये वैल्यू x1 होगा कि नहीं, इसका अगर कोऑर्डिनेट x1 है तो ये डिस्टेंस x1 हुआ, ये y1 हुआ. ठीक वैसे ही ये पूरा x2 होगा, पूरा y2 होगा. ठीक है. अभी ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक x2 है, ये x1 है, तो ये मेरा x2 माइनस x1 हुआ.
पूरा x2 था, इतना x1 था, तो ये x2 माइनस x1, ये पूरा y2 है, ये पूरा y1 है। अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर यहां दे दूं, इट इज r बोल के मैंने जो कहा, तो ये QR डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा y2 था, ये y1 है, मतलब ये भी y1 है, पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये हो गया मेरा y2 माइनस y1। ठीक है, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, ये एंगल है क्या, थीटा, तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल मैंने किया, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये इसके पैरेलल होगा, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। अब इन ट्राइंगल TQR, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ tan थीटा? मतलब स्लोप निकालने तो मेरे को tan थीटा का वैल्यू चाहिए। अब ये एंगल थीटा अगर है तो tan थीटा का वैल्यू इसका जो थीटा होगा और ये थीटा बराबर है, तो tan थीटा में इस ट्राइंगल में देख रहा हूं क्या होगा। तो इस ट्राइंगल में ये होगा डिस्टेंस QR बाय PR, इट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो जो tan थीटा का वैल्यू है या स्लोप है, दैट विल बी सेम, दोनों केस में ये सेम हो गया। उसके बाद में एक दो चीजें आपको और जानना होगा यहां पे कंडीशन में, वो है नोट नंबर 1, if two lines are parallel, दो लाइन अगर पैरेलल हुआ, so you think of this, ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल क्या होगा, थीटा सेम। तो इसका मतलब अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, अगर ये थीटा सेम है तो tan थीटा और tan थीटा दोनों सेम होगा। दैट मीन्स m1 इक्वल टू m2, मतलब दोनों लाइन का स्लोप अगर मैं निकालता हूं, m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, तो दोनों लाइन का स्लोप मेरे को अलग से मैं निकाल लूंगा, और अगर दोनों इक्वल हुआ आई कैन से दे आर पैरेलल। तो ये जो इंप्लाई साइन में दोनों साइड में अगर एरो मार्क हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 होगा, और इस तरफ वाले एरो मार्क का मतलब है m1 इक्वल टू m2 हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये है इसका डेफिनेशन। ठीक वैसे ही इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 दोनों मल्टीप्लाई करने से -1 मिलेगा। क्यों, उसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से दिखाता हूं। मैं यही चीज, ये दोनों जो है ना, ये मैं एक दूसरे फॉर्मूला से भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो आप लोग इसका चिंता मत करना कि हमको कैसे प्रूफ करना है, ये मैं दिखाऊंगा। ये सिर्फ आपको मैंने समझने के लिए दिया है कैसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लो ये 90 डिग्री मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को 90 डिग्री दिया है, तो मान लो इसका वैल्यू है थीटा, थीटा 1। ये मेरा अगर लाइन 1 हुआ और ये मेरा लाइन 2 हुआ, तो स्लोप ऑफ L1 क्या हुआ, tan थीटा 1, और स्लोप ऑफ L2 मुझे निकालना है। तो L2 का स्लोप अगर मुझे निकालना है तो मुझे ये एंगल पता करना होगा। अब ये एंगल कितना होगा,
ये एंगल होगा ये θ1 और ये 90 डिग्री. Sum of two interior angle of a triangle is equal to the exterior angle. That means that will be 90 degree plus θ1. Tan 90 degree plus θ1. Slope of L2. Tan 90 degree प्लस θ1 इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने किया है, ये होगा माइनस कॉट θ1. ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है. ठीक है. अच्छा, माइनस कॉट θ1 इक्वल टू मेरा हो गया M2. ये मेरा हो गया माइनस 1/tan θ1. लिख सकते हैं ना cot θ1 को. कैन वी राइट माइनस क्या है 1/tan θ1 is M2. Tan θ1 is M1. So that means minus 1/M1 is equal to M2. It means minus 1 equal to M1 into M2. तो ये हो गया इसका प्रूफ. अभी इसका we have two different uses of this formula. We have two different uses. Number one, if I want to show that these two lines are perpendicular, then we'll find their slopes, we'll multiply and we'll show it minus 1. Say for example, there is one slope is 2, M2 is minus 3. If they ask you whether these two are perpendicular or not, तो आप M1 M2 मल्टीप्लाई कर देखो. माइनस 1 आया क्या? नहीं. So it means these two are not perpendicular. तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है? They will not give you the slope directly. तुमको डायरेक्टली स्लोप नहीं दिया. वो ऐसे हो सकता है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है लाइन में, तो 2 पॉइंट देने से स्लोप कैसे निकालना हो आपको पता है, या एंगल दिया हुआ है तब आपको स्लोप कैसे निकालना पता है. उस केस में आप लोग स्लोप निकालने के बाद में ये कर सकते हैं. अनदर यूज, से इफ आई नो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, मान लो इसका स्लोप है -3/2 and I want the slope of the line perpendicular to this. इसका स्लोप निकालना. So let's say M2. So we know they are perpendicular. So M1 M2 is equal to -1. M1 हो गया -3/2 into M2 is equal to -1. So M2, this will take to this side, that will be 2/3. तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना इजी है अगर हमको पता है. एक तो प्रूफ करने के लिए कि दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, तब ये फॉर्मूला यूज होता है. या कभी कभी अगर मुझे एक लाइन का स्लोप पता है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो वो निकाल सकते हैं. और उसका एक अलग मेथड भी है जो डायरेक्टली हम लोग विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, मतलब इतना फॉर्मूला यूज बिना किए, वी कैन फाइंड. व्हाट यू हैव टू डू, यू चेंज द साइन. यहां माइनस है ना, सो M2 या माइनस है, यू मेक इट प्लस. यहां पे जो वैल्यू है यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, बस. से फॉर एग्जांपल M1 है मेरा माइनस से 3 है. सो परपेंडिकुलर टू M1, स्लोप क्या होगा उसका, यहां प्लस है यू मेक माइनस, यहां 3 है यू टेक इट्स रेसिप्रोकल, देन आफ्टर मल्टीप्लाई यू विल गेट -1. मल्टीप्लाई करके मुझे -1 चाहिए. सो दिस इज योर
स्लोप ऑफ लाइन. ठीक है. नाउ आई विल शो यू, आई जस्ट डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस. मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों के साथ में फॉर योर इंफॉर्मेशन. मैं आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन, मतलब इट्स ओनली लाइक हिंट्स. आई विल गिव यू सम हिंट्स हाउ टू प्रोसीड in your questions. So, question number 1. Draw a quadrilateral in the Cartesian plane. उस vertices are, तो आपको coordinates दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में. -4,5, दूसरा दिया हुआ है 0, 7, तीसरा दिया है 5, -5, और चौथा दिया हुआ है -4, -2. You have to make the quadrilateral. So I think all of you know how to make this quadrilateral. Quadrilateral कैसे बनाना है? You know how to locate the points. Locate करके you just join it. ठीक है? Now you have to find the area of this quadrilateral. अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट वी नो वन थिंग, दैट वी नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल. सो व्हाट विल डू, विल जॉइन द ऑपोजिट साइड. कोई भी ऑपोजिट साइड. आई एम जॉइनिंग AC. इफ यू वांट यू कैन जॉइन B and D. You can join any 2 points opposite side. Now this whole quadrilateral is broken into 2 different triangles. ये एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है. यहां से you can find the area of this triangle. Similarly you can find the area of this triangle. ये भी आपको पता है. So find these 2 area and you plus add these 2 areas, you will get the area of quadrilateral. So this is how we will do the first question. Now, there is one more question that I am going to discuss. Question number 2. The base of an equilateral triangle with side twice A lies along the y-axis such that midpoint of the base is at the origin. मैंने कहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड है twice A along the y-axis. y-axis में एक साइड है उसका, लेंथ ट्वाइस है. सच द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन. उसका जो मिड पॉइंट है ना साइड का, मान लो B and C, मिड पॉइंट इज एट ओरिजिन. फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. उस ट्राइंगल का वर्टिसेस निकालना. अच्छा, ये पूरा का पूरा ट्वाइस है, इसका मतलब कि ये A होगा, ये भी A होगा, isn't it? And let this is the third vertex. इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो भी मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर होता है ना, that always passes through the third vertex. थर्ड वर्टेक्स से पास होगा. इसका मतलब है A यहां पे नहीं हो सकता. That should be here. क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स. मतलब ये लाइन को वर्टेक्स से पास करना ही पड़ेगा. अच्छा, अगर ये A हुआ तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये A हुआ, ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो 0, A होगा, और ये होगा 0, -A. तो मुझे वर्टेक्स का
कोऑर्डिनेट्स निकालना था, उसमें से 2 कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गया, थर्ड कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं। सो लेट दैट बी x, 0। ये तो पता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा x एक्सिस के ऊपर, लेट बी x, 0। अच्छा, अगर ये x, 0 दैट मींस दिस डिस्टेंस इज x, और ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस तो ट्वाइस ए होना जरूरी है। सो दिस इज योर ट्वाइस ए। नाउ इन ट्रायंगल AOC, मतलब ये जो ट्रायंगल है, एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं? सो वी कैन यूज, बिकॉज ए राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम सेज x square, this square plus this square is equal to this hypotenuse square, that is twice a whole square. X square is equal to a square or plus a square is equal to 4a square. This implies x square is equal to 4a square minus a square. This gives you x square equal to 3a square. तो यहां से x का वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट विल पुट प्लस माइनस रूट 3a स्क्वायर और इट विल बी प्लस माइनस रूट 3a। तो इसका मतलब है इट मीन्स x इक्वल टू प्लस रूट 3 एंड नहीं है और x इक्वल टू माइनस रूट 3। 2 पॉइंट है। इसका मतलब थर्ड वर्टेक्स रूट 3,0 और माइनस रूट 3,0, क्योंकि x, 0 था, x का वैल्यू मैंने रूट 3 लिया, तो रूट 3,0 और माइनस रूट 3,0। अब क्वेश्चन है, यहां तो एक ही है वर्टेक्स, लेकिन क्वेश्चन में कब कहा कि वो वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है? ये इस तरफ भी हो सकता है ए डैश। इसी वजह से हमको 2 आंसर मिले। 2 आंसर हमको ऐसे नहीं मिला है, देयर इज ए रीजन। और ये रीजन क्या है? ये रीजन है कि यहां पे ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक। यू ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड देन यू आस्क मी योर डाउट्स। तो मैं जो अगले वीडियोस है, ये वीडियोस थोड़े से नॉर्मल जो वीडियो जो ग्रुप में जा रहा है ना, उससे थोड़ा अलग होगा, उससे थोड़ा बाद में होगा, बिकॉज Assamese वीडियो आई ऑलरेडी अपलोडेड, तो वो मैंने अपलोड कर दिया है। सो दैट आई विल शेयर, बिकॉज देयर आर मेनी Assamese स्टूडेंट ऑल्सो, दैट आई विल शेयर देयर। बट फॉर द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड Assamese, आई विल गिव दिस हिंदी इंग्लिश वीडियो, बट दैट माइट बी ए लिटिल लेट देन दोज वीडियो। आई विल मेक इट एवरी डे, आई विल अपलोड इट, सो इट टेक्स टाइम मेकिंग द वीडियो एंड अपलोडिंग इट, इट टेक्स टाइम, so that I will make and I will give it to you. So be patient. I don't think you will face any problem, but still if you feel that you have any doubt what I taught you today, so you can send me your queries and your Google Classroom will give you homework there. Just you need not to send to me. जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो मुझे मत भेजिए, आप करके देखिए। उसके बाद में हम गूगल क्लासरूम में जब होमवर्क देंगे तब आप उसमें उसको अपलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।